सो ये वाली वीडियो रहेगी हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर स्टॉक। पहले मैं लोगों का व्यू बताऊंगा कि लोग मल्टी बैगर कैसे ढूंढते हैं, फिर मैं अपना पैटर्न बताऊंगा कि मैं कैसे ढूंढता हूँ। एज यू कैन सी, इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिंग एज एन आर्ट। इन्वेस्टर्स आर नॉट मेड, दे आर born बाय बर्थ। You cannot prepare an exclusive list of checklists to find a potential multi-bagger stock, but you can check few most important parameters to increase the probability of the stock being a multi-bagger. वही देख रहे हैं कि ये बंदा क्या पैरामीटर्स बताएगा अब। रिटेल इन्वेस्टर्स शुड अंडरस्टैंड दैट ऑन एन एवरेज all asset classes like gold, FD, property, stocks, etc. give approximately 10% return per year. गोल्ड तो नहीं देता 10%, FD भी नहीं देता, बट चलो अगला कह रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं. So in 2 years you will get 20%. Okay, returns on normal basis. But a multi-bagger means a stock which multiplied 10 to 20 times in few years. Okay, good. So if you are able to find a true multi-bagger, you will get second. So if you are able to find a true multi-bagger, you will get 1000% to 2000% returns compared to just 20% returns on the normal basis. So you can see that there is a huge difference in returns, and that is why probability of finding multi-bagger is 1 out of 100, that is 1%. ऐसा इसका मानना है. But fortunately I was able to keep the multi-bagger ratio in my portfolio above 50%. अब देखते हैं कैसे. That means that 50% stocks in my personal portfolio and suggested portfolio became 10 baggers, that is multiplied 10 times. So you must be thinking how I managed to make 50% of my portfolio stocks multiply 10 times. अब देखते हैं कि आखिर कर क्या रहा है ये. As I said, there is no exclusive list of factors to be checked, but I will give you बता रहा वॉरेन बफे का जो ये give you first rule. Price is what you pay, value is what you get. At one other place, he also said, buy stocks in the same way you buy your grocery, not the way you buy your perfumes. What he wants to say in these two statements, he is saying that buy a stock when it is cheap, when investors are not rushing to buy it. Okay, when it is neglected, ठीक है. Do not track the stock prices on daily or weekly. ये तो important है. हर रोज ट्रैक करने का फ़ायदा नहीं है. It is much better to buy an excellent company at average price rather than buying an average company at excellent prices. Good. Stay away from debt laden companies. Good. Check the cash flow statements of the companies. Good. Company may be making good ROE, but all its profits might be stuck in debtors. ठीक है. Profits are of no use unless it is converted in free cash. Good. लुक एंड वो अच्छा वो फ्री कैश किस काम आएगा, ग्रोथ के ही तो काम आएगा ना. तो ठीक है. फर्दर रूल्स टू कीप इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग यू कैन रीड एट होम. मतलब बताया कुछ नहीं है, बस ये है कि डेली चेक मत करो और सस्ते प्राइसेस पे लेने की कोशिश करो, और जिस कंपनी में डेट ज़्यादा ना हो उसको फाइंड आउट करो. चेक द कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखते रहो कि कैश फ्लो हेल्दी है या पुअर है. बट मेरे ख्याल से यार ये सब पैरामीटर्स नहीं होते. मेरे ख्याल मैंने एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हुआ है कि फाइंड अ कंपनी विच हैज़ अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 30 to 70%. क्योंकि 70% या 100% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ लगातार 8 से 10 साल तक कोई भी कंपनी नहीं दे पाती. तो जिस भी कंपनी का 30, 35, 40, 50, 60, 70% का सेल्स ग्रोथ है ना भाई, देखना कि उसका कैश फ्लो भी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा. एंड इसी तरह की कंपनी, चाहे पास में बजाज फाइनेंस देख लो, रिलैक्सो देख लो. रिलैक्सो का मेरे ख्याल से CAGR 25% है सेल्स का, और वही कंपनी सारा कुछ इम्प्रूव करती है. अब मैं अपने हिसाब से कुछ पहले बातें बता देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा समझाऊँगा. देखो ये जो कंपनीज़ हैं 35% सेल्स ग्रोथ वाली,
शुरू शुरू में आप देखना कभी भी इनके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो 4 या 5% होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब अगर 1000 करोड़ का रेवेन्यू किया तो 40 से 50 करोड़ का प्रॉफिट। बट विद अ स्पैन ऑफ टाइम इन 10 12 years 8 years 20 years the profit margin stabilizes till 15 to 20%। अगर सेल्स ग्रोथ ही नहीं होगी तो कैश फ्लो का क्या करेंगे? तो यार देखो, मल्टी बैगर चाहिए ना तो कैगर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे तुमने म्यूचुअल फंड्स में देखा होगा कि ऑलमोस्ट सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स पिछले 8 10 या मैक्सिमम अगर तुम देखोगे तो 15 16 18% का रिटर्न देते हैं। तो उन कंपनीज की सेल्स ग्रोथ भी उतनी है विद अ सस्टेनेबल प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट भी उसी तरह से ग्रो करता है। कभी ये नहीं देखोगे कि 20% का प्रॉफिट मार्जिन 50 बन जाए। इन्फोसिस का प्रॉफिट मार्जिन 20% है तो 8 10 साल बाद भी देखोगे तो 20 ही रहेगा। सेल्स ग्रोथ जितनी है बस उतने से वो म्यूचुअल फंड ग्रो करता है। तो अगर तुम्हें मल्टी बैगर फाइंड करना ही है ना तो भाई पहले ये तो फाइंड करो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ कंपनी कौन सी है। वो तुम कभी फाइंड नहीं करोगे। तुम्हें चाहिए कुछ चीप स्टॉक 10 रुपये का जो किस्मत से हो जाए 200 रुपया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। देखो, मेरे पास जो नेम्स हैं, मेरे पास बहुत हेल्दी नेम्स हैं एंड मैं उनमें से एक आधा नेम शेयर करता हूँ। लाइक मेरे पास तो पूरी की पूरी लिस्ट है 60 या 70 स्टॉक्स की जिन्हें मैं मल्टी बैगर मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि 30 to 70% ही सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। अगर सेल्स ग्रोथ 20 30% भी है ना तब भी वो मल्टी बैगर है। 20% भी यार इनफ होता है। पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। अगर तुम 12 साल तक या 8 साल तक 20% के सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी पकड़ते हो, अब वो अलग बात है। फिर ईपीएस वगैरह के साथ अगर उसकी कैलकुलेशन होगी कि हाँ भाई आज उसका 5% प्रॉफिट मार्जिन है, 20% हो गया तो ईपीएस तो 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे तो वैल्यूएशन सिर्फ सेल्स ग्रोथ के अलावा ईपीएस के अकॉर्डिंगली भी बढ़ेगी। तो आपको लगेगा कि देखो 20% 12 साल में 9 टाइम्स हुआ, पर अगर प्रॉफिट मार्जिन भी 5 से 20% पहुंच जाए ना तो एक्चुअल में इंटू 4 36 टाइम्स होगा। सो तुम्हें, और अगर ऑलरेडी 15 से 20% है, सेचुरेटेड लेवल्स पे है, क्योंकि एबिटा यार, या एबिटा तो देखो हमेशा प्रॉफिट मार्जिन से तो ज़्यादा ही होता है क्योंकि उसमें टैक्स डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ये सब नहीं इंक्लूड होता। तो अगर एबिटा 30 to 40% है तो 90% तो होने नहीं वाला। अगर कंपनी की कॉस्ट है, कॉस्ट तो रहेंगी। तो आप ये मान के चलो कि सेल्स ग्रोथ हाई होनी चाहिए, करंट प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो तो चलेगा, क्योंकि फ्यूचर में जब वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो वही बना कर देगा आपको। चलो हम मान के चल रहे हैं कि आइडियल प्रॉफिट मार्जिन है, आइडियल सिचुएशन है, मतलब तो वो भी सेल्स ग्रोथ में 9 टाइम्स होएगी कंपनी। अब लेट्स अज्यूम 30% की सेल्स ग्रोथ है फॉर 12 years, वो 23 टाइम्स होगी। अब हम देखते हैं कि भाई ऐसी कोई कंपनी है जो पिछले 8 10 साल में 30 या 40% से सेल्स ग्रोथ कर रही हो। तो आपने कुछ कंपनी सुनी होंगी कि मेघमनी, फिनकैप, स्पेशलिटी केमिकल की कुछ टेक कंपनीज हैं जो करती हैं। तो एफएल इंडिया का हम देखते हैं टिकर टिप पे कि भाई उसकी रेवेन्यू ग्रोथ क्या थी और अभी क्या है। साथ में प्रॉफिट मार्जिन भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, सो दैट प्रॉफिट मार्जिन अगर 1153 करोड़ है रेवेन्यू तो 213 करोड़, यानी 15% पर प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेरियो में 20 25% जाएगा। आईटी आफ्टर टेक्नोलॉजी कंपनी ना, कम एम्प्लॉय कॉस्ट या कॉस्टिंग तो हमेशा रहेगी रहेगी। एंड करेंटली जो शुरू हुआ था तब प्रॉफिट मार्जिन था 9%, 1 करोड़ 30 नेट इनकम थी तो, और 14.95 करोड़ में तो इतना था। अब देखते हैं कि आखिरकार इसने कैगर बेसिस पे क्या रेवेन्यू ग्रोथ दी है। तो 1153 करोड़, 1153 डिवाइडेड बाय 14.95, 77 गुना हुआ है ये स्टॉक 8 साल में। तो हम कहते हैं कि 77 गुना हुआ है तो कितने परसेंट से ऑन एन एवरेज बेसिस ग्रो किया है। तो आई गेस 70 75% होगा। 73% हम लगा के देखते हैं 8 साल के लिए, 80 टाइम्स। 8 साल क्यों लिया? क्योंकि 2014 के फाइनेंशियल ईयर से 2022 के फाइनेंशियल ईयर पे बात कर रहे हैं। तो तकरीबन 73 तो नहीं, 71 करके देखते हैं। तो देखा जाए तो वही तकरीबन 71 72 ही 71 72% आ रहा है।
तो अब जैसे ये है वो होता है कि अब इसमें से कुछ चीज़ें होती हैं कि पहले 2-3 साल में कंपनीज़ बहुत स्मॉल होती हैं, तो उन्हें वो अनफ़ेयर एडवांटेज मिल जाता है डबल ट्रिपल होने का। तो हम उसे ये मान के चलेंगे कि पहले दो तो ऐसे कैलकुलेशन में क्या करना चाहिए, पहले 2 साल हटा देने चाहिए, और जब उसके थोड़ा आपको लगे कि हाँ थोड़ा सही हेल्दी रेवेन्यू पे पहुंच गया है, तो उस हिसाब से क्या कैलकुलेट करिए। एक्सेल पे भी कर सकते हो अगर आपको एक्सेल अच्छे आती है। एंड यार एक ही फॉर्मूला है, 20-30% प्लस होना चाहिए सेल्स ग्रोथ। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेल्स ग्रोथ पिछले 8-10 साल की बिल्कुल भी नहीं है, या फिर नेगेटिव है, और वो आपके लिए स्टॉक मल्टीप्लाई हो जाए। हुआ भी है एक ऐसा, टाटा टेलीकॉम टाटा कम्युनिकेशंस नहीं, टाटा वो का ये टाटा टेलीकॉम था ना शायद, कुछ जो 2 रुपये का 300 गया था, टाटा टेली सर्विसेज, यस। तो टाटा टेली सर्विसेज, अब ये क्या है, ये एक टिपिकल एग्जांपल है कि क्यों हमें ये अच्छा इन्वेस्टर नहीं बनने देता इस तरह के स्टॉक्स। क्यों हम किस्मत पे भरोसा करते हैं, ना कि हम अपने कैलकुलेशंस और अपने रिसर्च पे भरोसा नहीं करते। क्योंकि देखो, अगर तुम रेवेन्यू वगैरह देखोगे तो वो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एक बार चेक कर लूँगा मैं, अभी कर लेते चेक। तो जैसा कि देखने को आ रहा है कि फाइनेंशियल्स में खास इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, रेवेन्यू में 2% की इम्प्रूवमेंट है, तो और लॉसेस तो अभी भी कंसिस्टेंट है। तो देखा जाए तो कुछ भी फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हुए। इस तरह के स्टॉक्स क्या करते हैं, 200-300 टच कर लेते हैं, पंप कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उसे डंप कर देता है ऑपरेटर, और आप लोग उसी में फंसे रहते हो। तो यार, जब तक कि सेल्स ग्रोथ नहीं है, जब तक स्टोरी पता नहीं चल रही कि क्यों मल्टीप्लाई हुआ, अगर स्टोरी है तो स्टोरी के पीछे मत भागो, जस्ट फाइंड आउट द बेस्ट सेल्स ग्रोथ कंपनी एंड योर योर टारगेट वुड बी अचीव्ड। एंड इंस्टेड ऑफ दिस, ये टाटा टेली जैसे स्टोरीज़ के पीछे पता क्या होता है, ये टिपिकल गैम्बलिंग है कि क्यों स्टॉक मार्केट में लोग किस्मत पे ही आ जाते हैं, और एट दैट क्या होता है, हमने कोई स्टॉक पकड़ा अच्छे खासे मोटे वैल्यूएशन पे, चाहे HEG हो चाहे कोई भी हो, 2-3-4 साल तक वेट करते रहते, दोबारा आती नहीं इस लेवल पे। किस्मत अच्छी होगी, 10-12% लेके निकल जाओगे, फिर कोई ना कोई ऐसा हाथ में आ जाएगा। और कभी कभी होता है हम किसी स्टॉक को 10% लेके निकलते हैं, और 2-3 साल बाद देखते हैं तो यार 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, हम रिग्रेट करते हैं। तो हमें ऐसा क्या करें कि हमें रिग्रेट ना करना पड़े। तो यार पहले तो तुम्हें मार्केट कैप समझ आना चाहिए कि मार्केट कैप कितना है, साथ में कंपनी की ग्रोथ पता होनी चाहिए। अब जैसे जो कंजम्पशन ड्रिवन कंपनी है, जैसे तुम बाटा बोलते हो या फिर लैक्सो कहते हो या डाबर कहते हो, इन्होंने क्या है कि कंजम्पशन ड्रिवन है, यानी ये सेल्स तो हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से, पब्लिक डिमांड के हिसाब से अच्छी खासी करेंगे ही करेंगे, और भाई प्रोडक्ट अच्छा है तो सेल्स जनरल से ज़्यादा होगी। तो ये वो जो कंपनीज होती हैं इसलिए ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती हैं। अब यही आया कि ऑटो भी तो कंजम्पशन ड्रिवन होता है, तो ये 2017-18 के बाद कुछ करके क्यों नहीं गया। तो देखो, 20 साल 30 साल की तरक्की होते होते एक पीरियड ऐसा आता है जैसे चाइना की ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाती है, एंड आफ्टर दैट स्टेगनेंट ग्रोथ कंपनीज रिटर्न नहीं दे पाती। सो 18 तक पीक किया उन्होंने वैल्यूएशन, फिर 4 साल तक सेल्स ही नहीं आई, कोविड आया, वट एवर, एंड अब जाके थोड़ा बहुत पिकअप हो रहा है। अब जाके ऑटोज़ ने अपने लाइफ टाइम हाई टच किए हैं, जिसमें मारुति नहीं कर पाया, एंड अलॉन्ग विद टाटा मोटर्स भी नहीं कर पाया। टाटा मोटर्स एक्चुअली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं है, पर हाँ ठीक है, एक रेपुटेशनल लेवल फिर से हासिल कर लिया है। बट क्या उसकी यार, तुम देखना 5 या 10 साल की सेल्स रिपोर्ट क्या है, तो तुम उसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, किस्मत के भरोसे क्यों चल रहे हो यार। तुम्हें एक आइडियल कंपनी देखनी है जो 20-30-40-50-60-80% से सेल्स ग्रोथ करे, बस। एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड अ मल्टी बैगर। टिपिकल एग्जाम्पल तुम्हारा टेस्ला। टेस्ला ने तो वीडियो ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता, इसलिए अभी मैं टेस्ला के बारे में नहीं बताऊंगा।
और अगली किसी वीडियो में केस स्टडी करेंगे कि क्यों टेस्ला इतना बड़ा हुआ, कैसे हुआ। एंड बस वही एनालिटिक्स करो, नंबर्स देखो, क्योंकि यार तुम मैनेजमेंट नहीं चेंज कर सकते, तुम मैनेजमेंट से जाके मिल भी नहीं सकते। और मेरे ख्याल से कि तुम कितने भी रिसर्च कर लो, तुम्हें हमारे पास हमारी पावर है एनालिटिकल। जितना एनालिटिकली स्ट्रांग होगे उतना ही तुम कंपनी को बेटर समझ पाओगे। तुम बस किसी नाम बोल दिया, रतन टाटा का कंपनी है, वो है, ये है, भाई ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं दे रही ना विद सेल्स ग्रोथ तो नहीं हो सकता। अब सवाल ये भी उठता है कि कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके 50, 60, 70% सेल्स ग्रोथ है, जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, एक दो और भी हैं शायद, जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार के साथ डिलीवरी एंड एक आधे तो और है, जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी, डिलीवरी। जो लास्ट ईयर लिस्ट हुई है नाइका, यस। तो इनकी भी 30, 60, 80, 90% सेल्स ग्रोथ है। बट ये है कि स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो बेटा स्टॉक अगर परफॉर्म ही नहीं किया, अगर उसने इक्विटी वैल्यूएशन इंक्रीज ही नहीं की, तो 50, 80 करोड़ पे कर क्या रहते ये लास्ट ईयर। भाई कभी इनका जन्म हुआ था 4, 5, 8 साल पहले, कभी ये 100, 200, 500 करोड़ के भी होंगे जब फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई होगी। अब फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद वो 50 करोड़ से 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, भाई किसी ने तो करी ना, एंकर इन्वेस्टर्स ने, उनकी सेल्स ग्रोथ देखते हुए। तो इस तरह की कंपनीज ना वो अपने प्रॉफिट पे नहीं ग्रो करती, वो अपने सेल्स ग्रोथ पे ग्रो करती हैं। अब तुम कहोगे कि यार पर हमें तो सारी कंपनीज ने लॉस दिया। भाई लॉस जो है वो इसलिए है क्योंकि जो वैल्यूएशन थी, लेट्स अज्यूम कि जोमेटो की वैल्यूएशन प्री आईपीओ 5 या 7 बिलियन डॉलर्स थी। अज्यूम क्या करना है यार, खोल के देख लेते हैं, पता चल ही जाएगा कि प्री आईपीओ क्या थी। ठीक है, जोमेटो, इसका विकीपीडिया खोलेंगे, विकीपीडिया में एक जगह सेक्शन आएगा जहाँ पे फंडिंग बताई होती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि हमसे कहाँ गलती होती है। इन्वेस्टमेंट्स, सिक्योरिटीज, एक्विजिशंस, इन्वेस्टमेंट्स पे जाके देखते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स में हम देख पा रहे हैं कि फरवरी 2021 में जोमेटो ने 250 बिलियन डॉलर्स रेज किए विद द हेल्प ऑफ टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट एट अ वैल्यूएशन ऑफ 5.4 बिलियन डॉलर्स। कितना होता है 5.4? उस वक्त 278 होगा, 75 होगा, जो भी है, 5.4 इंटू 75, 40,000 करोड़ पे किया ना। एंड उसके पहले जब वैल्यूएशन इंक्रीज हुई तो कहीं पे लिखी है वैल्यूएशन, मतलब फंडिंग राउंड लिखा है बट वैल्यूएशन नहीं लिखी। चलो, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट हमें इतना पता चला है फरवरी 2021 में क्या था। एंड अब हम जोमेटो का शेयर प्राइस चेक करते हैं और वैल्यूएशन 52,000 करोड़, मतलब फरवरी से तो ऊपर ही है। अब हम आईपीओ प्राइस देखते हैं, किस आईपीओ पे आया था। तकरीबन 70-80 पे आया था, अगर आपको याद होगा। वो 170 टच किया था इसने जब इसका 169 लाइफ टाइम हाई था। सो अगर 63 रुपये पे ये 52,000 करोड़ गया तो 169 पे इसने तकरीबन, कैलकुलेट करो, 1.25 लाख करोड़ का रहा होगा। बट रियल में जैसा हमने देखा कि जोमेटो की वैल्यूएशन जो एंकर इन्वेस्टर्स ने दी, टाइगर ग्लोबल ने दी, वो 5.4 बिलियन डॉलर्स थी, 40 to 45,000 करोड़। अब पर आईपीओ आते तक, जुलाई में आईपीओ आते तक 3 महीने में आईपीओ आया, लेट्स अज्यूम 7 बिलियन डॉलर्स पे, जब 80 के प्राइस पे था। एंड वो 40-50% प्रीमियम लिस्टिंग हुई। अब तुमने आईपीओ के बाद उसको 1.25 लाख करोड़ का कर दिया। अगर 1.25 लाख करोड़ का है, 75-80 से भी अगर तुम डिवाइड करो, उस हिसाब से करा, उस साल के हिसाब से, तो कितना बना? तकरीबन 15 बिलियन डॉलर। अब तुमने कंपनी को कर दिया 15 बिलियन डॉलर, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब लिक्विडिटी होगी तो कंपनी ना 4-4, 6-6, 10-10 गुना हो जाएगी। और जब लिक्विडिटी नहीं होगी तो फेयर वैल्यूएशन के भी नीचे चली जाएगी। तो तुमने उसे 15 बिलियन डॉलर कर दिया विद इन 6 मंथ्स पीरियड। एंड आफ्टर दैट
लिक्विडिटी स्क्वीज आउट होने लगी यूएस से, यूएस की टेक कंपनीज गिरने लगी, तो बेचारे ये गिरता 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 अभी 52,000 करोड़ पे है, तकरीबन $6.5 बिलियन पे। तो और जब तुम क्वार्टरली रिजल्ट तुम लोगों में तो कोई चेक करता ही नहीं है, बट क्वार्टरली रिजल्ट हर बार चेक करना 60, 70, 80% की सेल्स ग्रोथ होगी। दैट मीन्स क्या है, 1.5, 2, 2.5 साल का पेन है। प्रॉफिटेबिलिटी तो देखो, कंपनी जब सोचेगी कि हाँ भाई अब हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पे भी फोकस करना चाहिए, ग्रोथ पे सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ पे पैसा लगा रहे हैं, एक्सपेंशन पे पैसा लगा रहे हैं, तो प्रॉफिट्स भी आते रहेंगे, 10, 12, 18% का मार्जिन आता रहेगा। एंड अभी जैसे सेल्स ग्रोथ पे ही वैल्यूएशन ड्राइव हुई है पिछले 5, 7 साल में, 10 साल में, तो अभी जैसे लिक्विडिटी नहीं है, और जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा उतनी लिक्विडिटी स्क्वीज होती जाएगी। अभी यूएस में 2 नवंबर को 0.75% हाइक होगा, तो लेट्स से 4% हो जाएगा। इंडिया में 5.9 है, तो दिसंबर तक एक और रेट हाइक होगा 6.4%। तो लिक्विडिटी हाई होने की, लो होने की वजह से अभी ये जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वो ग्रो नहीं करेंगी, पर वो एक 40, 50, 60 या मैंने एक लेवल पे फ्लोट करते रहेंगे 1, 1.5 साल तक, जब फिर इंटरेस्ट रेट गिरना नहीं शुरू होते हैं। एंड उसके बाद तुम देखो ये 2024-25 में फिर एक स्पाइक आएगा, 25 में आ सकता है। लिक्विडिटी स्पाइक कभी भी आ सकता है, बट स्टॉक्स में फिर एक स्पाइक आएगा, क्योंकि सेल्स ग्रोथ तो है ना भाई। अनटिल एंड सेल्स ग्रोथ है, मतलब कंपनी ग्रो, और ये एक ई कॉमर्स कंपनी 2030 तक ग्रो करती रहेंगी। सो हाँ, ये मल्टी बैगर मैंने इसको नहीं कहा कि अभी 52,000 करोड़ में मल्टी बैगर है जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, बट ये भी एक तरह की हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है। अगर ये प्रॉफिट्स निकालना शुरू कर दे, अभी तो इनके रेवेन्यू कितने, 4, 4, 4.5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा साल के रेवेन्यू नहीं होते, उसमें कितना कर लोगे तुम, 400 करोड़ का प्रॉफिट निकालोगे, तो ईपीएस के हिसाब से भी देखा जाए पी इनकी 200, 400 जाएगी, जो कि ओवर वैल्यूड कैटेगरी में होगा। तो अभी इनको प्रॉफिट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। एंड ये है कि इनकी जो ये हाई सेल्स ग्रोथ है, ये कम से 8, 10, 12 साल तक रहेगी, जब तक ई कॉमर्स सेक्टर पूरी तरह से सेचुरेट नहीं होता, सबके हाथ में फ़ोन नहीं आ जाते। पर जैसे कि तुम्हें पता है कि भारत दूसरे देशों से थोड़ा सा ज़्यादा ही ग्रो करता है, तो मान के चलो 2030-35 तक तो अच्छा खासा टाइम है। एंड वहाँ की ई कॉमर्स कंपनीज को देखो, चाइना अमेरिका की 100, 200, 500 बिलियन डॉलर्स है, तो फिर भी सस्ती मिल रही है 5, 6, 4 बिलियन डॉलर्स पे, $3 बिलियन पे के नीचे है शायद, $2.5 बिलियन पे पॉलिसी बाजार मिल रही है, विच हैज़ अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 100%। एंड तुम गैस लगा के चलो कि अगर विद द नेक्स्ट 10 years इफ इट इवन स्टेज एट 50% सेल्स ग्रोथ, तो कितने कंपाउंडिंग रिटर्न हो सकता है ये। अब मैं ना कभी वीडियो में ये समझाऊंगा कि यार ये इस तरह की कंपनीज हाई लिक्विडिटी मार्केट में क्यों आती हैं, होड़ क्यों बन जाती है अपने आप को लिस्ट करवाने की। HCL टेक हुई थी 1999 में लिस्ट, और 2007 में हुई थी टेक महिंद्रा लिस्ट। उनके साथ कंपेयर करके बताऊंगा कि यार आखिर चक्कर क्या है इनके प्रीमियम लिस्टिंग का, तो उस पे भी बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आज ये वाली वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, 23 मिनट की वीडियो होगी, गेस करो। सो ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, बिकॉज मैं ही ऑथेंटिक नॉलेज दे सकता हूँ, मैं ही वो कंपनीज बता सकता हूँ जो तुम्हारे काम की होंगी, ठीक है। नहीं बाकी तो स्टोरीज है, होगा नहीं होगा कौन जानता है भाई, इधर होगा अगर मैंने बोल दिया ना, क्योंकि तो इधर होगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में बता भी देता हूँ कि मैं सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ, यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सर्टिफाई किया है, बिकॉज मैंने वो एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, और बाकी तो सर्टिफाइड भी नहीं होते। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं ली क्योंकि अभी तक मेरे पास इतने फंडिंग नहीं है, मतलब अगर मैं 200 करोड़ 400 करोड़ मैनेज करने लग जाऊँ तो डेफिनेटली मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूँगा। मेरे पास लोग ही नहीं है, इन्वेस्टर्स ही नहीं है, तो मैं फंडिंग कहाँ से लूँगा। तो बाकी मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ। एंड ठीक है, सब्सक्राइब करो, अच्छी नॉलेज देंगे, अच्छी नॉलेज के साथ साथ ऑथेंटिक वे बताऊँगा कि भाई प्रॉफिट्स कैसे बन सकते हैं, मल्टी बैगर कैसे फाइंड हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।